Good morning students. In this lecture we'll discuss about the applications of operational amplifier. So there are many applications of operational amplifier, as the name indicates that it performs arithmetic operations. That is why it is known as operational amplifier, as I have already told you. So first application of operational amplifier is that it can be used as an inverting operational amplifier. So now in this application we will derive the formula for the gain in case of inverting operational amplifier. And there are two types of amplifiers, operational amplifiers: open loop gain operational amplifier and closed loop operational amplifier. And as we already know that जो closed loop amplifier है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, negative feedback ਹੁੰਦੀ है. And we all know that, as we have already studied in feedback in amplifiers, कि जो negative feedback है बेशक वो gain है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ open loop ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ decrease ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, but still ਉਹਦੀਆਂ advantages ਬਹੁਤ ਨੇ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਡਬੈਕ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ. ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਇਨਪੁੱਟ, ਦੋ ਇਨਪੁੱਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਪੁੱਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨॉन ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਪੁੱਟ. ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ. So this will be the circuit of operational amplifier when we will use it as a inverting operational amplifier. So inverting operational amplifier ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ inverting terminal ਤੇ input ਦੇਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ negative sign ਹੈ ਜਿਹੜਾ inverting terminal ਨੂੰ show ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ input signal ਹੈ ਉਹ ਇਸ inverting terminal ਤੇ provide ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਨॉन ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਗਰਾਊਂਡ. And RI जो है that is input resistance, RF is feedback resistance through which output ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਗੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਐਂਡ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਗਰ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਅ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ. ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰਾਊਂਡਡ. ਸੋ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਇਨਪੁਟ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਪੁਟ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡਡ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ. So suppose Vi is the input signal, Ri is the input impedance, Rf is the feedback resistance, V0 is the output voltage. So suppose I is the current flowing through this circuit in this way. ਇੱਥੋਂ flow ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ flow ਕਰੇਗਾ. So ਬੱਚੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ I ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ 'ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ I, potential at this point minus potential at this point. ਇਸ point ਤੇ potential ਕੀ ਹੈ, zero, divided by resistance which is Ri. So current जो है it will be Vi by Ri. And जो same current है, same I current ਉਹੀ ਇੱਧਰੋਂ RF ਚੋਂ flow ਕਰ ਰਿਹਾ.
सो ਇੱਥੇ जो करंट है ਉਹਦੀ वैल्यू की होएगी, करंट आई है पर ਇਹਨਾਂ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਦੀ वैल्यू होएगी किहदे इक्वल, वोल्टेज एट दिस पॉइंट विच इज़ 0 माइनस वोल्टेज एट द अदर पॉइंट विच इज़ V0 divided by resistance which is RF. So here I is equal to minus V0 by RF. And suppose this is your equation number 1, this is your equation number 2. And now from equation 1 and 2 current is same. Same current is flowing through RI and RF. So from 1 and 2, I it will be equal to VI by RI and it will be equal to minus V0 by RF. Now calculate V0 by VI. You have to calculate the closed loop voltage gain in case of inverting operational amplifier. ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, VO by VI. Move this VI to this side, you will get VO over VI, and move this negative sign and this RF to the other side. So we have V0 by VI which is gain with feedback in case of operational amplifier, closed loop gain, and it is equal to minus RF by RI. So this is the voltage gain in case of inverting operational amplifier. And this negative sign indicates that the output signal, it is out of phase with the input signal, or you can say that कि जो output and input है आ negative sign indicate कर रहा है कि उन्हां दोनों दे विच 180 डिग्री ਦਾ phase difference है। एंड इस टर्मिनल ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ। सो बच्चे सेकेंड एप्लीकेशन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर दी, दैट इज वी कैन यूज दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो जदों इनू तुसी एज अ नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करोगे उदों फिर आपां वोल्टेज गेन फाइंड करना, ठीक है। सो मीनस वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V0 बाय VI। सो इस केस च देखो नॉन इनवर्टिंग किवें है, ये नॉन इनवर्टिंग का मीनिंग हुण असी इनपुट है जिहड़ी वो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ते अप्लाई करांगे इनपुट सिग्नल। सो VI है जिहड़ा पहला नैगेटिव टर्मिनल ते अप्लाई कीता सी पिछले केस च, तां इत्थे असी अप्लाई कर रहे हैं किहदे ते, नॉन इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल ते। सो इत्थों पता लग रहा है कि ये की है, नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो सिर्फ नॉन इनवर्टिंग क्यों है, क्योंकि इहदा जिहड़ा इनवर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। तो इस केस दे विच आ जिहड़ा पॉइंट है वर्चुअली ग्राउंड पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हुण देखो आ जिहड़े टर्मिनल्स ने इनवर्टिंग ते नॉन इनवर्टिंग, इन्ना बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इंपीडेंस ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इहदे चों करंट फ्लो नहीं करता, इधरों इधर इधरों इधर। इहदा मीनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, these both are at a same potential, only then current flowing through these terminals will be zero। हुण इत्थे पोटेंशियल कितना, इत्थे आ VI है जिहड़ा उन्नी ही वोल्टेज होगी इत्थे, बिकॉज इत्थे किहड़ा कोई रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर हुंदी है, बट अदरवाइज होर कोई रेजिस्टेंस असीं बाहरों अटैच नहीं कीती। सो इट मीनस इत्थे वोल्टेज VI होगी। सो इस पॉइंट ते भी वोल्टेज की होनी चाहिए है, सेम पोटेंशियल ते होना चाहिए है पॉइंट, मीनस इत्थे भी वोल्टेज कितनी होएगी, VI होगी। एंड करंट है जिहड़ा एक बार इस इनपुट सिग्नल करके आउटपुट आ जाएगी, फिर उस आउटपुट का कुछ पार्ट है जिहड़ा वो एज अ फीडबैक जाएगा, जिहदे करके की करेगा, करंट फ्लो करेगा इन्हां टर्मिनल्स। ठीक है। सो करंट जिन्ना इत्थे फ्लो करेगा उन्ना करंट ही इत्थे फ्लो करेगा। सो बच्चे अगेन व्हाट विल बी द करंट थ्रू RF, it will be voltage V0 minus voltage at this point, that is VI, upon resistance is RF. So this will be the current through RF. Now what will be the current through RI? Same current it will flow through this RI, because no current is flowing through this. So जिन्ना इत्थे है वो इत्थे आके डिवाइड नहीं होएगा टू पार्ट्स दे विच, सारे दा सारा इधर फ्लो करेगा। So current through RI will be voltage at this end is VI and voltage at this end is 0 and resistance is RI। And suppose this is equation 1 and this is equation 2, so from 1 and 2 current is same। So from 1 and 2 we will have V0 minus VI
बाय आर एफ इट इज़ इक्वल टू वी आई बाय आर आई. फाइंड असी की करना वी नॉट बाय वी आई. इन्हां दी रेशो मीनस क्लोज्ड लूप गेन फॉर नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिहड़ा असी फाइंड करना. सो बच्चे नैक्सट स्टैप च की करोगे, आर एफ जो है इनू सैपरेटली लिखो, वी आई बाय आर आई. सो ये आ जाएगा वी नॉट बाय आर एफ, मूव दिस टर्म टू द अदर साइड, वी आई बाय आर आई प्लस वी आई बाय आर एफ. Now take this Vi common. Take Vi common, you will have 1 by Ri plus 1 by Rf. And now move this Vi to this side and this Rf to the other side. And you will get the closed loop gain for operational amplifier, and it will be V naught by Vi, and it is equal to this Rf. It will be multiplied by this and this. So it will be Rf by Ri plus Rf by Rf will be cancelled out, so we'll have 1. So नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस जो गेन है इट इज़ 1 प्लस RF बाय RI. सो हुण देखो ये कोई नैगेटिव साइन नहीं है. नैगेटिव साइन नहीं है दा मीनिंग की है कि नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस जो आउटपुट हुंदी है वो इनपुट सिग्नल दे नाल इन फेज हुंदी है. मीनस ओहदा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं हुंदा किहदे च, नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस. हुण बच्चे जो थर्ड एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर दी वो है दैट इट कैन बी यूज्ड एज द वोल्टेज फॉलोअर. वोल्टेज फॉलोअर दे विच की है जिहड़ा असीं नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कीता, अगर इस नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे विच तुसीं RF नूं जीरो कर दो एंड जो RI है इनू इनफाइनाइट कर दो. मीनस RI दी वैल्यू है जिहड़ी वो हाई कर दो ते RF नूं रिमूव भी कर दो. दैन की होएगा, जो इहदा फॉर्मूला है फॉर्मूले दे विच की होएगा, RF असी की कर रहे हैं इट अप्रोचेस टू 0 ते एदी वैल्यू की है वेरी वेरी हाई. सो व्हाट यू विल गेट दैट VO by VI इट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 मीनस इट विल बी 1 एंड एदा मीनिंग की है दैट VO इट इज इक्वल टू VI. एंड व्हाट डज इट मीन कि जो आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल नू की करेगा, फॉलो करेगा. एंड दैट इज वाई एट दैट टाइम दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट इज नोन एज वोल्टेज फॉलोअर. दैन जो फोर्थ एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर दी ये है कि असी इनू या तो एडिशन पर्पजेज लिए यूज कर सकते हैं या कह लो कि समिशन लिए. एंड एट दैट टाइम इट इज़ नोन एज एडर और समिंग एम्पलीफायर. हुण बच्चे जो असी इत्थे समिंग एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ किया, इत्थे देखो तुसीं जिहड़े डिफरेंट इनपुट वोल्टेजेस ने जिहड़ियां वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर नूं प्रोवाइड करोगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट होगी वो की होगी, इन्ना इनपुट वोल्टेजेस का सम होगी. ठीक है, हो सकता कि वो सम एम्पलीफाई होके आवे. ठीक है, अगर तुसी एक पर्टिकुलर ओदा केस रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली जिन्नी तीनों इनपुट वोल्टेजेस का सम होएगा उन्नी ही आउटपुट आऊगी. हुण ये जिहड़ियां इनपुट वोल्टेजेस ने, इनपुट सिग्नल्स ने तिन्ने, ये इत्थे आपां इनवर्टिंग टर्मिनल ते अप्लाई कीते हैं एंड जो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है उन्होंने असीं ग्राउंड किया. ਇਹਦਾ मीनिंग ये जिहड़ा समिंग एम्पलीफायर है या एडर है इनवर्टिंग कॉन्फिगरेशन दे विच असीं यूज कर रहे हैं. पर तुसी ये विच ये जिहड़ा टर्मिनल है इनवर्टिंग वाला इनू भी ग्राउंड करके जिहड़ा नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है उहदे ते भी तुसी दो तो एक तो ज़्यादा वोल्टेजेस प्रोवाइड करके आउटपुट चैक कर सकते हो. वो भी एज एन एडर बिहेव करेगा. बट तुहाडे BSc दे सिलेबस दे विच सिर्फ उन्होंने इनवर्टिंग कॉन्फिगरेशन नूं डिस्कस किया कि ये एज आ समिंग एम्पलीफायर किवें एक्ट करती है इनवर्टिंग कॉन्फिगरेशन. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉन इनवर्टिंग एज आ एडर एक्ट नहीं करती, वो भी एक्ट करती है बट वो तुहाडे सिलेबस दिती नहीं हुई. सो असी देखांगे बच्चे इत्थे असी हुण प्रूव की करना कि आउटपुट है जिहड़ी वो इन्ना इनपुट वोल्टेजेस का सम है. तो उहदे लई असी तुसी दो भी लै सकते हो. सो सपोज कर लो कि साडे को N इनपुट वोल्टेजेस ने. ठीक है, हुण देखो इत्थे जो करंट सपोज इहदे चों करंट फ्लो कर रहा I1, सपोज इहदे चों कर रहा I2, R3 चों सपोज फ्लो कर रहा करंट I3 एंड इस पॉइंट ते आके इस सारे करंट की हो जाते हैं कन्वर्ज. ते समिशन तो बाद अगर तुसी किरचॉफ्स करंट लॉ लाओगे तो इत्थे करंट है जिहड़ा वो आई जा रहा है इधर. ਉਹੀ आई करंट है जिहड़ा इहदे चों फ्लो करेगा बिकॉज करंट ने इधर तो फ्लो करना नहीं. क्यों? क्योंकि जे इत्थे पोटेंशियल जीरो है एक्चुअल दे विच ग्राउंडेड है तो इत्थे भी पोटेंशियल जीरो होएगा. ये पॉइंट वर्चुअली ग्राउंड पॉइंट होगा. सो किरचॉफ्स पहला तो किरचॉफ्स करंट लॉ लाओ. किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग की है कि जो ये आई है ये किहदे इक्वल होएगा,
इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड हुणे आई किहदे इक्वल है, आई इत्थों फ्लो कर रहा, आई किहदे इक्वल है, इत्थे वोल्टेज है 0, इधर वोल्टेज है V0, तो आई किहदे इक्वल है 0 माइनस V0 बाय RF। हुण बच्चे I1 की वैल्यू लिखो, I1 दे इस एंड ते पोटेंशियल कितना V1 माइनस दूसरा एंड आ वाला, जे इत्थे पोटेंशियल 0 है तो इत्थे भी 0 होएगा, इत्थे 0 है मीनस आ तिन्ना पॉइंट्स ते पोटेंशियल 0 होएगा। सो V1 माइनस 0 बाय R1। I2 की वैल्यू की होएगी V2 माइनस 0 बाय R2 एंड V3 माइनस 0 बाय R3। सो इत्थों माइनस V0 बाय RF ये आ जाएगा V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। Move this negative sign and RF to this side and you will get V0. It is equal to minus RF V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3। हुण देखो जो आउटपुट है वैसे वो इनपुट वोल्टेजेस का की है सम है, बट एग्जैक्टली वो इक्वल कदों आएगी जो तुसी एक पर्टिकुलर कंडीशन यूज करोगे। अगर तुसी वो पर्टिकुलर कंडीशन यूज नहीं करोगे तो उस केस की होगा जो आउटपुट है ये इन्ना तिन्ना इनपुट्स का एंपलीफाइड वर्जन होगी, ज़्यादा होगी सम तो। ठीक है, एग्जैक्टली V1 जे आ सपोज 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट, तो एग्जैक्टली सम कितना होगा ਇਹਦਾ 6 वोल्ट। सो आउटपुट है जी 6 वोल्ट कदों आएगी जदों RF R1 R2 R3 ना कैंसल हो जाए। कैंसल कदों होगा अगर तीनों रजिस्टेंसेज R1 R2 R3 R दे इक्वल होण ते जो RF है ये भी R दे इक्वल होवे। चारों रजिस्टेंसेज एक दूसरे सारियां रजिस्टेंसेज अगर एक दूसरे दे इक्वल होणगियां बच्चे तो इत्थे R R R इनू तुसी कॉमन कढ लोगे R नू, देन RF भी R है, सो R दे नाल R कैंसल हो जाएगा। माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा जे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो तुसी। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों है बिकॉज इत्थे असी इनपुट वोल्टेजेस किहड़े टर्मिनल ते अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल्स इनवर्टिंग टर्मिनल ते। सो आउटपुट आउट ऑफ फेज आएगी बट आएगी 6 वोल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट एडर एम्पलीफायर।